I hope you all are fine and safe at your place. Myself Meenakshi Sharma welcomes you on the online classes of Vidya Bal Bhavan Senior Secondary School. Beta, in my last video, that is video session 42, what I had discussed, just have a look. I had discussed the section formula, first section formula and midpoint formula. Midpoint formula. Section formula means, suppose if you have the line segment joining the points A and B and the coordinates of point A is x1, y1, coordinates of B is x2, y2 and P is any point on the line segment AB. P is any point which is lie on the line segment AB. So P divides the line segment AB in the ratio n is to n, where the coordinates of P are capital XY. Got it? So how will you write the section formula? So P divides the line segment AB internally in the ratio n is to n. So coordinates of P will be mx2 plus nx1 divided by m plus n, and the coordinates of B is my2 plus ny1 divided by m plus n. This is the coordinates of P. Okay? So with the help of section formula, you can find out the coordinates of P, where P divides the line segment in the ratio n is to n. Division means section. Division means section. On the other way, आपने midpoint formula discuss किया. Midpoint formula means here P, if P is lying in the mid of AB, अगर जो P point है, suppose this coordinates x1, y1 और इसके coordinates है x2, y2 and P is lying in the mid of AB and the coordinates of P क्या है, capital XY. इससे डिफाइन किया है. अब यहाँ पे देखो, ये जो P पॉइंट था ये कहीं पे भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट AB पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है. लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या था, P lies on the line segment AB on the mid of, मिड पे लाई करेगा, ठीक है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले थे, x1 plus x2 by 2 एंड कैपिटल Y कैसे निकाला था, y1 plus y2 by 2. बेटा अगर यहाँ पे आप m और n को रेशियो 1:1 बोलते हो, 1:1 बोल देते हो, इक्वली डिवाइड कर रहा है ना, तो अगर 1:1 रेशियो हो जाती है तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला में. आप करके भी देख सकते हो. इन प्लेस ऑफ m और n पुट इट 1, तो यहाँ पे मैंने 1 रखा, तो 1.x2 plus 1.x1 divided by 1 plus 1, so it becomes x2 plus x1 by 2. This is same as this. So if the ratio is 1:1, अगर ratio 1:1 किया, that means वहाँ पे क्या हो रहा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. Got it? So in this video session 43, I would continue with exercise 7.2. I had already done question number 4 to 8 in my video session 42. So in this video session 43, I will discuss the last two questions and the basic concept of the new chapter, that is the trigonometry. Got it? Before that, please have a look. Question number 9 of exercise 7.2. Read the question carefully. Question number 9 is, find the coordinates of the points which divides the line segment joining the points. सबसे पहले एक line segment draw करो. A, call this point -2, 2 and this is 2, 8. Got it? Line segment joining the point this and this into 4 equal parts. कहते हैं 4 equal parts में divide हो रही है. तो इसका मतलब यहाँ कहीं M होगा, यहाँ कहीं N होगा, यहाँ कहीं O होगा. तो देखो 4 equal parts कैसे हो गए, AM, MN, NO, OB. 1, 2, 3, 4. 4 equal parts में डिवाइड है. जब यहाँ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली मिड पॉइंट लगा सकते हो आप, क्योंकि इक्वली डिवाइड है. जब इक्वली डिवाइड होता है तो आप वहां पे मिड पॉइंट लगा सकते हो. कैसे? इन दैट केस यू कैन से दैट n इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. जो n है वो AB का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से आप n के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो बाय यूजिंग मिड पॉइंट. इन द सेम वे यू कैन से दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ AN. तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू यू कैन फाइंड आउट दीज. And O is the midpoint of NB. So with the help of these two, you can find out O coordinates also. So I am doing, have a look. Since
n is the midpoint of AB. Therefore, coordinates of n के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं, ध्यान से देखना. n lies between a and b, a और b के बीच में लाई करता है. तो x कोऑर्डिनेट को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2. मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 बाय 2 होता है ना, मतलब x कोऑर्डिनेट को ऐड करो 2 से डिवाइड करना है. तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, -2 प्लस 2. तो -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y कोऑर्डिनेट्स 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2. तो इट बिकम्स क्या बनेंगे, -2 प्लस 2 गिव्स 0, 0 by 2, 0 by 2 is 0, कॉमा 8 प्लस 2 10, 10 by 2 5. समझ में आ गया. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, 5. गॉट इट. इन द सेम वे m is the midpoint of what, an. m is the midpoint of an. Therefore, coordinates of m is given by, देखो m के कोऑर्डिनेट्स, अब a और n का मिड पॉइंट m है, तो -2 प्लस 0 बाय 2 कॉमा 2 प्लस 5 बाय 2, 2 प्लस 5 बाय 2. So it becomes -2 plus 0 gives -2 by 2 it gives -1, comma 5 plus 2 7 by 2. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -1, 7 by 2. आपने कैसे निकाले, x कोऑर्डिनेट को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2. So in that case we will get the coordinates of point m के कोऑर्डिनेट्स आ गए. कोऑर्डिनेट्स मींस the value of x and y. Coordinate means the value of x and y. In the same way, n is the midpoint of NB. O. O is the midpoint of NB. NB का midpoint है O. तो इसके coordinates कैसे निकालोगे, देखो 0 plus 2. Therefore, coordinates of O क्या हो जाएंगे, 0 प्लस 2 बाय 2 कॉमा 5 प्लस 8 बाय 2. सो इट बिकम्स 0 प्लस 2 gives 2, 2 by 2 that is 1. So 1 कॉमा 8 प्लस 5 13 बाय 2. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1 कॉमा 13 बाय 8. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. यहाँ पे कुछ नहीं था, विच डिवाइड करा था. यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट इसलिए लगाया था क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था. अगर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला ही लगता. बेटा सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट क्या है, स्पेशल केस है सेक्शन फॉर्मूला का ही. वो एक केस है जहाँ पे m और n आपका क्या होता है 1:1. तो जो n के o के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1, 13 by 2 है बेटा, सॉरी 13 by 2. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. The last question of exercise 7.2, ठीक है, तो have a look and this question is important, you can say. Question number 10 is find the area of the rhombus if its vertices are this and this taken in order. Taken in order means A B C D. You cannot take A B C D. आपको ऑर्डर में ही लिखना है. First coordinate goes with A, second coordinate goes with B, then C and then D. Taken in order, that means. ठीक है, इसका मतलब ये. तो एक मैं रोम्बस ड्रॉ कर रही हूं. रोम्बस मीन्स हैविंग ऑल द साइड्स आर इक्वल. ABCD is a rhombus having the coordinates 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1. Got it? अब आपने क्या करना है, you have to find the area of this rhombus and the 4 vertices are given to you. So what will you do? अब यहाँ सेक्शन फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, ठीक है, मिड पॉइंट भी नहीं लगा सकते. आपको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है. एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स D1 एंड D2. 2 डायगोनल्स होते हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 हाफ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स. एंड डायगोनल्स कौन से बचे, डायगोनल्स आर नथिंग बट AC and BD. AC and BD are the diagonals.
So in short, you can say that you have to calculate half into AC into BD. आपको ये निकालना है, ठीक है। अब AC कैसे निकालोगे? In that case, AC is what? The distance between the 2 points. AC means the distance between the 2 points. तो AC डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करोगे। कॉल दिस इक्वेशन इन स्टार, बाद में आप यहाँ पे पुट कर देना। नाउ डिस्टेंस AC का डिस्टेंस क्या निकालते हैं? ये A है, ये C है। x कोऑर्डिनेट को माइनस करो और उसको स्क्वायर करना होता है ना, तो -1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। गॉट इट? ये देखो AC, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स में से इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं, तो x कोऑर्डिनेट को माइनस करो, y से y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, तो इट बिकम्स -1 माइनस 3, इट बिकम्स -4 स्क्वायर एंड इट बिकम्स 4 का स्क्वायर। -4 स्क्वायर गिव्स 16 प्लस का 16 एंड प्लस 4 स्क्वायर अगेन गिव्स 16, इट बिकम्स 32 अंडर रूट 32। 32 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो 2 पेयर्स बाहर आएंगे, तो आंसर क्या आएगा? 4 अंडर रूट 2 स्क्वायर यूनिट। सॉरी, हाँ, डिस्टेंस निकाल रहे हो ना, तो डिस्टेंस किसमें आता है? हमेशा यूनिट में, कोई ना कोई यूनिट होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस 4 अंडर रूट 2 यूनिट। अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करते तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, हाफ मार्क्स यही कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो बी केयरफुल। आफ्टर दैट डिस्टेंस BD इज व्हाट? दिस। तो BD के माइनस करोगे, -2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना? How to find out the distance between the 2 points? If you have given A and B points, x1, y1, x2, y2, तो आप क्या करते हो? अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, वही किया मैंने, ठीक है। सो इट बिकम्स -6 का स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, इट बिकम्स व्हाट? 36 प्लस 36 एंड दिस बिकम्स 72। 72 को कैसे लिखोगे? 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा ऐसे कर लो, या तो 72 ना, 12 into 6 72 होता है। तो अब ऊपर कर लो, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा? 12 into 2 किया ना, 6 किया ना, 4 into 3 और ये बनेगा 2 into 3, तो ये 4 बाहर निकल के क्या आ जाएगा? 2, और ये 3 के पेयर, तो एक 3 बाहर आएगा, क्या रह जाएगा? 2। तो 6 रूट 2 यूनिट। कितना आ गया? 6 अंडर रूट 2 यूनिट। गॉट इट? सो अब मैं ये स्टार में नाउ पुट आफ्टर दैट बेटा, फर्स्ट में आपने ये करना है, उसके बाद ये लास्ट में ये, उसके बाद यहां से क्या आ गया? 1/2। AC इज व्हाट? AC इज 4 अंडर रूट 2 एंड BD इज व्हाट? BD इज 6 अंडर रूट 2। सो अंडर रूट 2 क्या होता है? 1/2 into 2 अंडर रूट 2 becomes 2 and 4 6 are 24, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ। आंसर क्या हो गया? एरिया ऑफ रम्बस 24 स्क्वायर यूनिट। Why I have written square? Because हमेशा एरिया किस में होता है? स्क्वायर यूनिट में होता है। Got it? So I hope you understood this question and this is the last question of exercise 7.2. 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नॉट इन योर सिलेबस। इस साल ये ओमिट हो चुका है फ्रॉम द CBSE, ठीक है, सिलेबस से रिमूव हो चुका है। CBSE हैज रिमूव्ड एक्सरसाइज 7.3, so only you have to do exercise 7.1 and 7.2 and this completes your chapter. I hope you understood very well. So thank you so much. I have completed chapter number 7, that is coordinate geometry. In coordinate geometry, chapter number 7, you have to do only exercise 7.1 and 7.2. As 7.3 is not in your syllabus, this is omitted from the syllabus. Got it? So today I am taking the new chapter, that is chapter number 8, trigonometry, and I hope you will enjoy this chapter. But I have a request to each and every students that please watch the video very carefully and observe it, whatever we are doing. Got it? So have a look
chapter number 8 trigonometry, and this chapter is very scoring as well as interesting also. So the word trigonometry is derived from the Greek word trigonometron. Got it beta? Tri means three, gon means sides, and metron means measurement. In short, you can say that three sides measurement is known as trigonometry. Got it? थ्री साइड्स का मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है. थ्री साइड्स किसमें होती है? एक ट्राइंगल के अंदर. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल. गॉट इट? सो यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, right angle at B. Got it? BC is the base. BC is your base. AC is your hypotenuse. And AB is your perpendicular. AB is your perpendicular. So this is the right angle triangle. ABC is the right angle triangle. Right angle at B. BC is the base. AB is the perpendicular, and AC is the hypotenuse. Got it? So the next one is also we will study about trigonometry ratio. There are 6 types of trigonometric ratio. Got it? Sin theta, cos theta, tan theta, or you can say tangent theta, cosecant theta, sin theta. Got it? Next, cosec theta या cosecant theta, sec theta, or you can say secant theta, and the last is cot theta. Got it? So there are 6 types of trigonometric ratio which you will study in this chapter, chapter number 8, trigonometry. So beta, what is sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, and cot theta? I am discussing about the ratio. मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ? रेशियो की. इसका मतलब जो साइन थीटा कॉस थीटा ये रेशियो में होगा, और रेशियो मीन्स सब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. रेशियो का मतलब तो यही होता है, डिवीजन. रेशियो मीन्स डिवीजन. तो इन शॉर्ट यू कैन से दैट साइन थीटा इज नथिंग बट सब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. गॉट इट? सो विद द हेल्प ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल you will find out the ratios of all these. Got it? So sin theta is nothing but perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse, or in short you can say P upon H. sin theta का रेशियो किसमें होता है? sin theta का रेशियो होता है perpendicular और hypo में. Perpendicular divided by hypotenuse is known as sin theta. Sin theta क्या होता है? It is the ratio between the perpendicular and the hypotenuse. Got it? In the same way, cos theta means base upon hypo, or in short you can say B upon H. Got it? And the third is tan theta. Tan theta is the ratio of perpendicular upon base. Perpendicular upon base, or in short you can say P upon B. Got it? And cosec theta, beta, cosec theta is the reciprocal of sin theta. Cosec theta is the reciprocal of sin theta, so you can say hypo upon perpendicular, that is H upon P. जो sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec थीटा होता है, और cosec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? sin थीटा. इसका मतलब sin थीटा और cos थीटा आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल्स होते हैं. ठीक है? अभी मैं आपको और अच्छे से इलैबोरेट करूंगी इस चीज को. sec theta is the reciprocal of cos theta. So sec theta is
hypo upon base, or you can say h upon b. Got it? And cot theta is the reciprocal of tan theta. Cot theta is the reciprocal of tan theta. So you can say base upon perpendicular, that is, in short you can say b by p. So these are the trigonometric ratio. Okay, with the help of some examples, with the help of some question, we will do one by one each and everything. I hope you understood this thing. I have told you about the right angle triangle and the 6 trigonometric ratio. You can say sin theta, cos theta, tan theta. sin theta का उल्टा मैंने आपको क्या बताया था, मैं यहीं पे लिख लूं. sin theta का उल्टा क्या था, cosec theta, और you can say cosecant theta. This is called the theta. theta कैसे बनाते हैं, जीरो बना के अंदर इसके ऐसे कट करना. This is called the theta. Got it? cos theta का उल्टा क्या था, sec theta, secant theta you can say, and the tan theta का opposite is cot theta, cotangent theta. ठीक है, तो these are the 6 trigonometric ratios. So listen carefully whatever I am doing. Okay, okay. Sin theta is nothing but, you said perpendicular upon hypo. Sin theta is perpendicular upon hypo. Cos theta is base upon hypo. Tan theta is perpendicular upon base. और sin theta का उल्टा क्या था, cosec theta. तो cosec theta को क्या लिख सकते हो, h upon p. इसका उल्टा होगा ना. In the same way sec theta का उल्टा h by b, and cot theta का उल्टा tan theta है, तो b by p. तो these are the 6 trigonometric ratio which you will study in this chapter, that is chapter number 8. Trigonometry basically in exercise 8.1 you can say. Got it? So अब ये देखो, इसको लर्न करने का क्या तरीका है, आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ. How will you learn all these things? Got it? ट्रिक. आप एग्जाम में भूल जाओ कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो आना था कि बेस अपॉन हाइपो आना था, कभी कभी भूल जाते हैं ना. तो एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. आई एम रिपीटिंग. P stands for पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. सोना चांदी तोले. सोने का S, चांदी का C, तोले का T. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. इसका मतलब क्या हो गया, S for sin theta. S for sin theta. तो sin theta is nothing but P by H, and you can see P by H. Cos theta is nothing but B by H, and tan theta is nothing but P by B. I hope you understood the trick. Okay, how to recall? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. Got it? तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा. तो cosec थीटा इसका उल्टा हो जाएगा h by p. इसके बाद cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा h by b. एंड tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, तो इसका हो जाएगा b by p. I hope you understood this trick. How to learn the trigonometric ratios? बेटा आपने ये क्या था, these are the trigonometric ratios. Trigonometric ratio. Got it? ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. रेशियो मतलब ये रेशियो क्या है, P by H. परपेंडिकुलर और हाइपो में क्या है, रेशियो है. बेस एंड हाइपो में क्या है, रेशियो है. तो these are the trigonometric ratios. Got it? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, लिसन केयरफुली. एग्जाम में आएगा, रिप्लेसिंग दिस थिंग. ठीक है, एग्जाम में आएगा, सपोज ये आपको 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है. ठीक है, it is given 3, it is given 4. This is already given to you. I am also saying that angle B is 90 degree. So you can see easily that ABC is a right angle triangle. अगर ABC right angle triangle है, आपको थर्ड साइड नहीं गिवन हुई. So by the help of Pythagoras theorem से आप थर्ड साइड निकाल सकते हो. ध्यान से सुनना मेरी बात, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2 साइड्स गिवन होती है, आपको थर्ड निकालनी है. ये भी हो सकता था बेटा ये साइड गिवन हो, कोई भी साइड गिवन हो सकती है. ठीक है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालते हो, इन ट्राइंगल ABC
बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। गॉट इट? तो यहाँ से AB क्या है? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 4 4 is 16, 3 3 is 9, AC square. So it becomes 25 is equal to AC square and 5 is equal to AC. इसका मतलब AC क्या आ गया आपके पास? 5 आ गया। ठीक है बेटा, ये भी हो सकता था कि ये दो साइड्स दे दे और आपको ये निकालनी थी। तो आपको कोई भी दो साइड्स गिवन हो तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट द थर्ड वन। ठीक है, सपोज अगर आपके पास ये दोनों थी तो यू कैन फाइंड आउट दिस वन। If these twos are there, you can find out this one. If these twos are there, you can find this one with the help of this Pythagoras theorem. ठीक है? तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दो साइड्स गिवन होती है, थर्ड पाइथागोरस थ्योरम से निकाला, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो अब आपके पास सबकी वैल्यूज है। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो 4/5 ये आंसर है साइन थीटा का। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपो, बेस इज 3 एंड हाइपो इज 5 एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3। गॉट इट? कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? 5/4 and this becomes 5/3 and this becomes 3/4। गॉट इट? तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मेंशन होगा, ठीक है, गिवन होगा, टू साइड्स गिवन होगी। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट द थर्ड साइड। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा फाइंड आउट करो। गॉट इट? इसमें एक और भी है बच्चे, साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1/cosec थीटा and cosec theta can be written as 1/sin theta. Got it? sin theta को आप क्या लिख सकते हो? 1/cosec theta। आप देख सकते हो sin theta का रेसिप्रोकल है ना 1/cosec, तो उसका उल्टा हो जाएगा h/p आया हुआ है। ठीक है, इन द सेम वे cos theta को आप लिख सकते हो 1/sec theta and sec theta को आप लिख सकते हो 1/cos theta। ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज tan theta कैन बी रिटन एज 1/cot theta and cot theta कैन बी रिटन एज 1/tan theta। तो दीज आर द रेसिप्रोकल। sin theta का रेसिप्रोकल क्या है? 1/cosec theta। cosec theta को आप लिख सकते हो 1/sin theta and so on similarly cosec and tan also। Got it? I hope you understood. You studied 6 trigonometric ratios sin theta, cos theta and tan theta। ठीक है, अभी मैं ये सिर्फ 3 ले रही हूँ। sin theta is perpendicular upon hypo, cos theta is base upon hypo and tan theta is perpendicular upon base। तो आपने लिखा sin theta 4/5 and this is 3/5 and this is 4/3। ठीक है, ये तो था एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इफ ABC, मान लो इस टाइप से क्वेश्चन आए, इफ ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, ठीक है, एंड दिस फिगर इज गिवन टू यू। सपोज अगर ये गिवन नहीं होता तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप ये थर्ड साइड निकाल लेते, AC निकाल लेते। उसके बाद आता क्वेश्चन फाइंड sin A, cos A, tan A। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा। इन प्लेस ऑफ थीटा नाउ यू हैव A, in place of theta now you have A, in the same way in place of theta now you have A। अगर आपको sin theta, cos theta, tan theta ना फाइंड आउट करा के ये फाइंड आउट कराता तब आपका आंसर क्या होता? टुडे आई एम डिस्कसिंग ओनली द बेसिक कॉन्सेप्ट। In next video, that is video session 44, I will discuss exercise 8.1 which is entirely based on this concept। Got it? So sin theta देखो फॉर्मूला तो वही है बेटा, P/H, B/H एंड P/B। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, रेशियो वही है। लेकिन यहाँ थीटा और यहाँ A, थीटा इज योर एंगल, थीटा क्या आपका एंगल है। इन द सेम वे A भी आपका क्या है? एंगल है। ठीक है, नाउ इन प्लेस ऑफ थीटा अब आपके पास क्या आ गया? A आ गया। तो आप फिगर में जाओगे, वट एवर द फिगर विच इज गिवन टू यू। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जहां पे भी A है ना
ये ए है, आपको क्या निकालना है, साइन ए। तो क्या होगा, उसके सामने वाला जो भी एंगल मेंशन होगा, whatever एंगल इज मेंशन एक्सेप्ट थीटा, थीटा को छोड़कर जो भी एंगल मेंशन है उसके सामने वाला क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जो भी एंगल है उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि अब आप थीटा नहीं निकाल रहे, अब आप ए निकाल रहे हो, ठीक है। तो वैसे आपका ये क्या था, बेस था, अब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 और हाइपो वही रहेगी। अब मैं आपको फिर से समझा रही बेटा, आपका परपेंडिकुलर ये है और ये आपका बेस है, ठीक है। कब, जब थीटा गिवन है, जब थीटा गिवन है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो हाइपो वही है। लेकिन जब आपको ए निकालना है तो अकॉर्डिंग टू रूल साइन ए निकालना है ना, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर होगा। जो भी एंगल मेंशन होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर यहाँ पे था, परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया, तो बेस उधर चला जाएगा ना। इसका मतलब 4 आपका क्या बन गया, बेस बन गया, और 3 आपका क्या बन गया, परपेंडिकुलर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/5। कॉस ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या है, 4, ये बेस हो गया ना, तो 4/5। इन द सेम वे tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है आपका 3। वैसे ये क्या था आपका, ये आपका बेस था ना, लेकिन यहाँ पे tan ए निकलवा रहे हैं, तो ए के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 और बेस कितना हो गया 4। गॉट इट, समझ में आया। इन द सेम वे बेटा, अगर मैं सी की बात करती हूं, इफ आई एम फाइंडिंग आउट साइन सी, कॉस सी, टेन सी, अगर ये निकालते हैं तो बेटा फॉर्मूला वही लिखना है, P/H, B/H एंड P/B, ठीक है, फॉर्मूला ये लिखना है। तो P देखो, C के सामने वाला परपेंडिकुलर, अब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपो कितनी है 5, बेस ये परपेंडिकुलर यही रहेगा। C के केस में जब हम C की बात करें तो परपेंडिकुलर ये है, जब हम A की बात करें तो हमारा परपेंडिकुलर ये है। तो जब परपेंडिकुलर ये है, मान लो मैं हूं और मेरे साथ एक पर्सन है, मैं उनकी सीट पे गई हूं, तो मेरी वाली सीट वैकेंट है ना, तो वो पर्सन मेरी सीट पे आएगा ना, थर्ड साइड पे तो नहीं जाएगा, जो सीट वैकेंट होगी वो वही आएगा ना। जब परपेंडिकुलर बेस पे आ रहा है तो बेस परपेंडिकुलर पे जाएगा बेटा, फिर नंबर वही रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे ये 3 है ना, तो 3 का 3 ही रहेगा। आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 थी, तो वो 4 यहाँ पे उठ के नहीं आएगी। गॉट इट, आपका जो बेस है वो परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, सॉरी बेस कितना है 4, हाइपो कितनी है 5, सॉरी बेस इज 3, ये परपेंडिकुलर है ना, तो बेस 3, हाइपो 5, tan C का परपेंडिकुलर ये है, तो ये 4/3। गॉट इट, समझ में आया आपको। मान लो अगर ये फिगर ऐसे होती, BCA, ये होता 4, ये होता 3, ये है 5, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं बोलती हूँ साइन B निकालो, देखो साइन B, तो साइन B क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब B की बात करें तो B के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3, हाइपो वही रहेगी। अगर मैं बोलूं cos B निकालो, cos B का मतलब B के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, तो बेस का है, इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना है 4, हाइपो कितनी है 5। इन द सेम वे tan B क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये B है ना, B के सामने वाला क्या है, B के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, बेस कितना हो गया 4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। एक बार मैं फिर आपको रिकॉल करा रही हूँ ये, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थीटा एंड एंगल, ठीक है। मान लो आपके पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से सुनना। सपोज यू हैव दिस राइट एंगल ट्राइंगल BCA, गॉट इट, राइट एंगल एट A, ये है 4, ये है 3, ये है 5, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि फाइंड आउट साइन थीटा, तो आपने लिखा फॉर्मूला क्या है, P/H, P इज, थीटा की बात करें, जब बेटा थीटा होता है ना, तो परपेंडिकुलर
कितनी है 5, यहाँ पे बेस कितना है 4, हाइपो कितनी है 5, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4. आई होप यू अंडरस्टूड वेन थीटा इज गिवन. बट इन प्लेस ऑफ थीटा अगर आपके पास साइन ए है, साइन बी है, कॉस बी है और टेन बी है, अगर मैं ये निकलवा लूं तो बेटा रेशियो आपकी वही रहेगी P/H, B/H और P/B. ये फॉर्मूला तो वही रहेगा, जो रेशियो का फॉर्मूला वही रहेगा. अब देखो मैं B की बात कर लूं, अगर थीटा है तो बेस बेस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, हाइपो हाइपो, कुछ भी चेंज नहीं होगा. इन प्लेस ऑफ थीटा इफ यू हैव AB और सम अदर C, देन व्हाट विल यू डू? B की बात करें, अब ये आपका परपेंडिकुलर है, अब आपका ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 4, हाइपो वही रहेगी 5. अब बेस, अगर B के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो बेस ये हो गया, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो परपेंडिकुलर था वो बेस में आ गया, तो आपका बेस परपेंडिकुलर में जाएगा ना. बेटा सिर्फ नाम एक्सचेंज होंगे, वैल्यू नहीं. यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, यहाँ बेस की वैल्यू 4 है, मैंने सिर्फ नेम एक्सचेंज करे हैं, उनकी वैल्यू एक्सचेंज नहीं करी है. तो कॉस बी क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या है 3, हाइपो कितनी है 5. देखो डिफरेंस आ गया ना, यहाँ कॉस थीटा B/H था, यहाँ कॉस बी भी B/H है, रेशियो सेम रहेगी. लेकिन थीटा के केस में इसके आंसर 4/5 है और B के केस में व्हेन एंगल चेंज, जब आपने एंगल को चेंज किया तो आंसर कितना आ गया 3/5. अब 10B, B के केस में क्या है, ये देखो ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर आपका हो गया 4 और बेस हो गया 3. इन द सेम वे अगर मैं निकालू साइन C, कॉस C, टेन C, अगर मैं ये निकालती हूँ तो रेशियो वही रहेगी P/H, B/H एंड P/B. गॉट इट? तो देखो साइन C, अब ये C है तो ये आपका क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर. तो अब परपेंडिकुलर 3 है तो जहां जहां परपेंडिकुलर है वहां 3 3 कर दो, ठीक है. बेस आपका क्या है 4, तो जहां बेस है वहां 4 4 कर दो, हाइपो वही रहेगी 5 5. समझ में आ गया? B के केस में ये परपेंडिकुलर, जो भी एंगल मेंशन हो उसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो वैल्यू मेंशन होगी वो आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी, ठीक है. इन द सेम वे ये C था तो ये सामने वाला आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस कॉन्सेप्ट यू कैन से we will do whenever we will do video session 44. In that video session I would like to explain the exercise 8.1 and the entirely exercise 8.1 is based on this concept. I hope you understood. Beta, I have a request to each and everyone, watch the video very carefully and I hope you will understand.